Chalo, let's start with our first lecture about AI, that is artificial intelligence. So AI चालू करने के लिए my first question to you is what you understand by the term intelligence. Artificial जाने दो. Start bombarding on the chat or start unmute and answering. Intelligence मतलब क्या? So this is our first lecture. तो थोड़ा introduction part जरूरी है. Many of you might have attended my first lecture of IoT. So this is Professor Amit Nerurkar, and we are today here for the lecture series of artificial intelligence. So my research area lies with AI itself. So what exactly is AI? Is this subject entirely theoretical? No. The answer is not at all. It is purely logical based, जिसमें बहुत सारे sums है. हर theory concept explain करने के लिए आपको numerical example लेना पड़ेगा. So talking about AI, artificial intelligence. Intelligence is nothing but some power where you can think and take a decision. That is some kind of an intelligence what we need to understand. But here the artificial intelligence talks about how exactly you can simulate the human brain thinking into a system so that the system can act like a human, work like a human, think like a human. So it is a simulating or simulation of how we can impart a human like brain knowledge into the system so that system can start mimicking like a human brain. So first, to define AI, we need to first give tribute कि ये AI जो है, this AI, ये AI actually, who is the person who is responsible to coin the term AI? जैसे IoT में था केविन एस्टॉन, वैसे यहाँ पे भी कोई है. So talking about the textbooks, you can opt for these two textbooks which are really very good. उसमें से Peter Norvig and Stuart Russell, this is a famous book of AI. ठीक है, अगर आपको खरीदना ही है, you should opt for this AI, a modern approach you should go for. Now talking about who is the person behind defining this term AI. So these are the four fathers of AI: John McCarthy, Alan Turing. Then I'm talking about Minsky and Simon. These are the founding members, the founding forefathers of AI. But the term AI is coined by scientist, a well-known scientist, John McCarthy. तो ये अभी नहीं हुआ है, ये अभी नहीं हुआ है, 1960s की बात है. तो यहाँ पे लिखा देखो, मैकार्थी कॉइन्ड द टर्म एआई. सो टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एआई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ डेफिनेशन. एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस processes by machine, especially computer system, so that the computer system can mimic like human brain. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम कैन मिमिक लाइक ह्यूमन ब्रेन. सो एज ऑफ नाउ एनी डाउट, एज ऑफ नाउ एनी डाउट, पर कैसे? ये मेरा क्वेश्चन है, ये कैसे करेगा तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम?
तो उसके लिए ना आपको पता होना चाहिए द आर्किटेक्चर ऑफ एआई एजेंट. सो सबसे पहले राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एआई. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एआई और ये डेफिनेशन लिख के ले लो. डन हो गया तो बताओ, क्योंकि आई विल नॉट बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द इंट्रोडक्शन, मतलब द एआई थियोरेटिकल पार्ट. आई विल डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो दैट आपको पता चलेगा कि एआई exactly how you are going to make the system understand to work or think like human brain. ठीक है. अभी ये स्टेटमेंट लिखे होने के बाद also mention the term AI is coined by John McCarthy. John McCarthy. The term AI is coined by John McCarthy. John McCarthy. Okay. Now, एक स्टेटमेंट लिखो. What are the components of AI agent? What are the components of AI agent? एकदम सिंपल चीज है. मुझे यहां पे एनवायरमेंट से जो कुछ भी हो रहा है वो परसीव करना है. एंड परसीव करने के लिए आपको पता ही है ना, मुझे लगेगा सेंसर. सेंसर जो भी परसीव करेगा वो देगा कंट्रोलर को. कंट्रोलर विल हैव द नॉलेज बेस विच वी कॉल इट एज inference engine, and this controller is going to present कि फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए, which would be presented back to the environment with the help of एक्चुएटर. तो अगर मैं यहां पे बताऊं परसीव कौन करेगा, जरा बताओ प्लीज, अनम्यूट एंड आंसर. कौन सा कंपोनेंट परसीव करेगा? सेंसर. एक सेकेंड ना. हाँ. कौन सा कंपोनेंट प्रोसेस करेगा? कंट्रोलर. कंट्रोलर प्रोसेस करने के लिए तुम्हारे इनपुट को इंटरप्रेट करेगा एंड रीजनिंग के लिए, ये दोनों स्टेप के लिए वो यूज करेगा इन्फरेंस इंजन. एंड जो आउटपुट देगा वो एक्शन विल बी प्रेजेंटेड बाय एक्चुएटर. ये इधर दिख रहा है आपको, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. अभी हाउ दिस ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम वर्क्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको आईओटी में एक्सप्लेन किया था, बट देन अगेन वी विल रीइटरेट रिविजिट. मैंने ऐसा इधर कुछ तो ऐसा एक बनाया था जिसको मैंने क्या बोला था, सॉइल. इस सॉइल के अंदर मैंने क्या डिप कर दिया था? इस सॉइल के अंदर मैंने डिप कर दिया था सेंसर. मॉइस्चर सेंसर. ये मॉइस्चर सेंसर was connected to a controller, and this controller was further connected to the water pump.
एंड इस वाटर पंप से आप क्या सप्लाई कर रहे थे? वाटर। सो यहां से वाटर सप्लाई हो रहा था यहां से, बट वाटर सप्लाई का जो भी इनपुट था वो क्या था? यहां पे आपको इनपुट में क्या मिल रहा था? यहां पे आपको इनपुट में मिल रहा था, व्हाट वाज द इनपुट यू आर गेटिंग हियर? आपको इनपुट में यहां पे मिल रहा था मॉइस्चर कंटेंट। एंड अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, ठीक है, आई रिपीट, अगर आपका मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया तो तुम क्या करने वाले हो? ऑटोमेटिकली वाटर पंप को ऑन करोगे। एंड मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली वाटर पंप को ऑफ करोगे। तो इसके लिए ना कुछ रूल्स लिखे गए हैं। ये करने के लिए ना कुछ रूल्स लिखे गए हैं। उन रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एआई रूल्स। एंड दोज एआई रूल्स आर स्पेसिफिकली with the help of if then। मतलब if moisture decreases then water supply increases, if moisture increases then water supply decreases. So this you will be mentioning with the help of some AI rules. So specifically talking about the overall architecture of AI agent, सेंसर से वो इनपुट लेगा, वो इनपुट को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, इंफरेंस इंजन के पास जाएगा और डिसीजन लेगा। और वो डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एक्चुएटर को देगा। एंड द एक्चुएटर इज गोइंग टू गिव दैट एज अ आउटपुट बैक टू द एनवायरमेंट। तो यहां से ये इनपुट। सो डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक एआई एजेंट का ब्लॉक डायग्राम? डिड यू अंडरस्टैंड एक केस स्टडी जो मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ जनरली द रूल्स आर रिटन? इट इज इन द फॉर्म ऑफ इफ देन। सो नोटबुक में हेडिंग दो स्ट्रक्चर ऑफ एआई एजेंट और ये ड्रॉ करो। और ड्रॉ करने के बाद जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो भी लिख के ले लो, स्ट्रक्चर ऑफ एआई एजेंट।
Okay, then you write down, for example, automatic plant watering system. For example, automatic plant watering system. सिर्फ ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम ड्रॉ करो, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। वो जो ऊपर ऊपर सब लिखा है ना, वो कुछ मत लिखो, सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करो। और जो मैं अभी स्टार्ट बाजू में स्टेटमेंट लिखा है वो लिख के ले लो। तो इसके बाद एवरीवन बी रेडी, वी आर स्टार्टिंग विथ सम्स। चलो अभी लेट अस स्टार्ट। एवरीवन इन योर नोटबुक, आई वांट यू टू गिव हेडिंग एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग? का मतलब यही है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग solution to the given problem. That is another way में a path to reach goal state from initial state. Example,
गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैसे जाओगे ए टू बी? तो कैसे जाओगे उसका आंसर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना देर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व। कोई कुछ लिखेगा नहीं अभी। 3 स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कौन से स्टेप्स है? कोई अभी कुछ लिखेगा नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है जिसका नाम है स्टेट डिस्क्रिप्शन। दूसरा स्टेप है जिसका नाम है एक्शंस। एंड तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ट्री। तो अभी ये सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज 8 पजल प्रॉब्लम। 8 पजल प्रॉब्लम। मुझे चाहिए कि आप अनम्यूट रखो, जो लोग एक्टिव है, और मुझे आंसर देते जाओ। जो लोग एक्टिव है ना मुझे आंसर देते जाओ, एंड आई वांट एवरीवन टू बी एक्टिव। मेरे पास ना एक इनिशियल स्टेट दिया हुआ है, और वो इनिशियल स्टेट ना कुछ ऐसा है। 1 2 8 3 4 5 6 7, और ये ना मेरे पास एक ब्लैंक टाइल है। ब्लैंक टाइल है मेरे पास, और मेरे पास ना एक गोल स्टेट दिया हुआ है। सो इफ यू सी देर आर टोटल 8 टाइल्स जिसके साथ मुझे खेलना है। इसके लिए नाम है 8 पजल प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8, और टाइल इधर सेंटर में। ये मेरा गोल स्टेट है। ये मेरा गोल स्टेट है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, एंड बोला गया है क्वेश्चन फाइंड द सोल्यूशन। तो अभी मैंने इनडायरेक्ट पहला स्टेप लिख के दिया है, स्टेट डिस्क्रिप्शन। तो यहां पे सोल्यूशन चालू होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेट डिस्क्रिप्शन। तो स्टेट डिस्क्रिप्शन आपको इस बार ना क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इनिशियल स्टेट एंड गोल। आपको स्टेप दिया हुआ ही है पहले से। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? एक्शंस। हर एक टाइल आप क्या कर सकते हो? हर एक टाइल आप मूव कर सकते हो, बट 4 ही डायरेक्शन में। और आपका बेसिक काम क्या रहेगा पता है? आपका बेसिक काम रहेगा ओनली मूव ये वाला टाइल। इसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक। तो उसको ही मूव करने का फोकस करना है। आजू बाजू क्या करना है वो छोड़ो। बट व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस आई कैन डू? आई कैन मूव अप, आई कैन मूव डाउन, आई कैन मूव लेफ्ट, आई कैन मूव राइट, आई कैन मूव इन 4 डायरेक्शन। ठीक है। सो अप नहीं बोलता हूं, मैं लिखता हूं टॉप डाउन लेफ्ट राइट। टॉप डाउन लेफ्ट राइट। ये 4 पॉसिबल एक्शंस मेरे मेरे को पॉसिबल है। तो अभी ये 4 पॉसिबल ऑपरेशंस मेरे पास अवेलेबल है। उसका मतलब ये मेरा इनिशियल स्टेट। व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 इज सॉल्यूशन ट्री। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। अभी ये मेरा इनिशियल स्टेट है। मेरा फोकस क्या रहेगा? किसको घुमाना मेरा फोकस रहेगा? मैंने अभी आपको लिख के दिया ना, मेरा फोकस क्या रहेगा? किसको घुमाना मेरा एम रहेगा? एक सेकेंड ना, मेरा वॉल्यूम का कुछ तो इश्यू लग रहा है।
ब्लैंक टाइल। 6 को मूव करना मेरा एम नहीं है, ब्लैंक टाइल को मूव करना मेरा एम है। तो मुझे बताओ, मैं अभी ब्लैंक टाइल को कहां मूव करूं? क्या मैं उसको नीचे लेके जा सकता हूं? मेरे पास जगह है नीचे लेके जाने के लिए? नहीं। मैं अगर लेफ्ट में लेके गया तो जरा चेक कर लो ना, 7 अपनी जगह पे बराबर है ना? तो मैं लेफ्ट में लेके गया तो 7 का पोजीशन हिल जाएगा, तो लेफ्ट में लेके जाना भी गलत है। और राइट में लेके गया तो 5 का पोजीशन हिल जाएगा, 5 अपनी जगह पे बराबर है। तो अभी मैं एक ही ऑपरेशन कर सकता हूं, कौन सा बताओ? तो यहां पे लिखने का एक्शन नंबर 1, एंड टाइल को शिफ्ट करो। टाइल को शिफ्ट करोगे तो बताओ जरा मुझे क्या मिलेगा आपको? 1 2 8 3 4 5 6 7 टाइल, ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि मैं एज पर रूल नंबर 1, एक्शन नंबर 1, मैं टॉप में चला गया। चलो मुझे जरा अभी अनम्यूट करके बताओ, मैं अभी इस टाइल को कहां लेके जा सकता हूं? नीचे लेके गया तो पाप लगेगा क्योंकि मैं नीचे से ही ऊपर आया। राइट में लेके गया तो नहीं चलेगा क्योंकि 4 अपनी जगह पे बराबर है। तो मैं कहां लेके जा सकता हूं? मैं इधर लेफ्ट में लेके जा सकता हूं या ऊपर लेके जा सकता हूं। मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस अवेलेबल है। जिधर से आया वहां नहीं जा सकता, राइट में जा नहीं सकता क्योंकि राइट में 4 अपनी जगह पे बराबर है। तो मैं इधर लेफ्ट में जाऊंगा या मैं टॉप में जाऊंगा? तो मैं क्या करता हूं, मैं वापस टॉप में जाता हूं। अगर मैं टॉप में चला गया तो मुझे बताओगे मेरा प्रॉब्लम अभी कैसे दिखेगा? इट विल बी 2 टाइल 8 3 4 5 6 7 1। अभी मुझे बताओ, मेरा टाइल डाउन जा सकता है क्या? नहीं। मेरा टाइल अप जा सकता है क्या? नहीं, जगह ही नहीं है। मेरा टाइल राइट में गया तो जरा देखो ना, 3 अपनी जगह पे बराबर है एज पर गोल स्टेट। तो मैं 3 को क्यों हाथ लगाऊं? तो मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन बचता है, एकदम परफेक्ट। कौन सा ऑप्शन बचता है? कि एक काम करो भाई, उसको लेफ्ट में लेके जाओ। तो लेफ्ट में जाना मतलब मेरा स्टेप नंबर 3 रहेगा कि भाई तुम लेफ्ट में लेके जाओ। तो लेफ्ट में जब लेके जाओगे तो मुझे बात बताओ, अभी तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? इधर आएगा टाइल, इधर आएगा 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक है, अभी वापस थोड़ा सोचो। मेरे टाइल को मैं ना मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, ना लेफ्ट में लेके जा सकता हूं। और राइट में से तो अभी आया मैं, तो राइट में भी लेके नहीं जा सकता। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, स्टेप नंबर 2, नीचे चले जाओ। तो नीचे अगर आप चले जाओगे टॉप से डाउन, तो मुझे बताओ मेरा सोल्यूशन ट्री में क्या दिखेगा अभी आपको? इधर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, टाइल आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अभी मैं टाइल को ऊपर लेके नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर से ही मैं आया हूं। लेफ्ट में लेके जा नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट में कुछ है ही नहीं। नीचे भी लेके जा नहीं सकता क्योंकि 7 अपनी जगह पे बरोबर है। तो अल्टीमेटली मैं एक ही जगह जा सकता हूं, और वो है स्टेप नंबर 4 यूज करके राइट, या एक्शन 4 यूज करके राइट। एंड अगर राइट में मैं चले गया तो मुझे दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये टाइल। चेक करो, इज दिस योर गोल स्टेट? इफ दिस इज योर गोल स्टेट, यू नीड टू स्टॉप। डिड यू अंडरस्टैंड द 8 पजल प्रॉब्लम? इजी था, इजी था 8 पजल प्रॉब्लम। आपको सिर्फ देखना है, यू नीड टू कीप कंपेयरिंग योर स्टेट विद द गोल स्टेट, स्टेट विद द गोल स्टेट। और 2 प्रॉब्लम से और क्लियर होंगे, बट अभी आप नोटबुक में लिख के ले लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये लिख के ले लो फटाफट।
चलो, नाउ राइट डाउन एग्जाम्पल, 8 puzzle problem, 8 puzzle problem, and question is find the solution. Find the solution. प्लीज सॉल्व बेटा, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ो मत, क्योंकि सॉल्व करोगे तो ही प्रैक्टिस होगा. स्टेप 3 सोल्यूशन ट्री. ये देखो 3 steps इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसका मिस हुआ है लिख के ले लो. और 8 puzzle problem भी लिखो, क्वेश्चन लिख के ले लो. जिसका लिख के हुआ है प्लीज हैव अ पेशेंस, बाकी सबका लिख के हुआ नहीं है, जैसे हो जाएगा इन नेक्स्ट 2 minutes आई स्क्रॉल डाउन. जिसका हो भी गया है, स्टेप नंबर 1 लिखो, स्टेट डिस्क्रिप्शन, एंड वापस इनिशियल स्टेट गोल स्टेट ड्रॉ करके रखो. चलो स्क्रॉल डाउन, दिस इज योर सोल्यूशन.
Okay, done with this. Can I start with the second problem? किसी का बाकी है? I'll wait for 2 more minutes. Wait. Okay, we'll wait for 2 minutes. चलो next write down. Next write down. Vacuum cleaner problem. Vacuum cleaner problem. Second one. Vacuum cleaner. आपको सिनेरियो ये दिया हुआ है कि मेरे पास 2 रूम्स है. दिस इज रूम ए, दिस इज रूम बी. यहां पे देयर इज अ वैक्यूम क्लीनर. दिस इज माय वैक्यूम क्लीनर. और यहां पे ना ऐसा डर्ट है, ऐसा रूम में भी डर्ट है. तो ये डॉट 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 इंडिकेट्स डर्ट. दिस वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है, फाइंड solution for cleaning the rooms. Vacuum cleaner can be in any room. मैंने फिलहाल आपको बताया रूम ए में है. ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, ये फाइन. अभी कुछ लिखना नहीं है. मुझे सिर्फ एक बात बताओ, एम क्या है? एम इधर दिखा है. क्या लिखा है? एम है रूम को क्लीन करना. चलो लेट मी स्टार्ट विद अ सॉल्यूशन. अनम्यूट एंड प्लीज आंसर. यार चैट पे बाद में डालो. अनम्यूट और आंसर दो. व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? ये एकदम वाला परफेक्ट. क्लीन करेगा. नहीं, अपना फर्स्ट स्टेप इज स्टेप डिस्क्रिप्शन. स्टेट डिस्क्रिप्शन में तुमको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज योर इनिशियल स्टेट एंड व्हाट इज योर गोल स्टेट. ये तुमको बताना पड़ेगा. तो इनिशियल स्टेट गोल स्टेट बताने के लिए आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है कि आपका वैक्यूम क्लीनर कोई भी रूम में हो सकता है. तो आपको इधर 2 चीजें लिखनी पड़ेंगी. अज्यूम वैक्यूम क्लीनर इज इन रूम ए इनिशियली. सिमिलरली तुमको अजम्पशन लिखना पड़ेगा रूम बी का. तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट एक्स रिप्रेजेंट रूम, लेट वाई रिप्रेजेंट एक सेकेंड. लेट वाई रिप्रेजेंट क्लीनलीनेस of room A. Let Z अरे represent. बोला मुझको छुट्टी दी अभी. Sneha, please unmute. Sorry, mute करो please.
represent cleanliness of room B। ठीक है, इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं आप इधर अज्यूम कर रहा हूं x इक्वल्स टू 1 implies room A, x equals to 2 implies room B। ठीक है, y equals to 3 implies not clean, y equals to 4 implies clean, z equals to 5 implies not clean, and z equals to 6 implies clean। तो अभी आपको इनिशियल स्टेट डिराइव करना है, तो मैं यहां पे ये स्टेटमेंट फिलहाल उठा के यहां लिख देता हूं कि अज्यूम योर वैक्यूम क्लीनर इज इन रूम ए इनिशियली। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी माय इनिशियल स्टेट? इनिशियल स्टेट रहेगा x इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग, z इक्वल्स टू समथिंग। सिमिलरली मेरा गोल स्टेट क्या रहेगा? x इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग, z इक्वल्स टू समथिंग। बट ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो वैक्यूम क्लीनर है इट इज इन रूम बी, मतलब इधर ए नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? बी। तो देखते हैं कितने लोगों की दिमाग की बत्ती चलती है। चैट पे मत डालो, मुझे अनम्यूट करके आंसर दो। चैट पे मत डालो, अनम्यूट करके आंसर दो। चलो मुझे बताओ, x इक्वल्स टू, इफ आई एम इन रूम ए, x इक्वल्स टू क्या रहेगा? अनम्यूटेड आंसर। x इक्वल्स टू 1 रहेगा। x क्लीन नहीं है, मतलब a क्लीन नहीं है, मतलब y का वैल्यू क्या रहेगा? बिकॉज y इज रिप्रेजेंटिंग क्लीनलीनेस ऑफ a, तो y का वैल्यू क्या रहेगा? क्लीन नहीं है तो 3। और z का वैल्यू क्या रहेगा? z इज फॉर क्लीनलीनेस ऑफ b, 5। 5। ठीक है, गोल स्टेट क्या होना चाहिए? आई शुड क्लीन a, मतलब y होना चाहिए 4। आई शुड क्लीन b, मतलब z होना चाहिए 6। सो इफ आई एम इन रूम a, आई शुड गो इन रूम b, दैट इज 2। ये मेरा गोल स्टेट होना चाहिए। ठीक है, चलो मुझे बताओ अभी तुम बताओ, आई एम इन रूम बी, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? फटाफट बोलो, रूम बी मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2। परफेक्ट। क्लीन नहीं है, ना ए क्लीन है ना बी क्लीन है, तो 3, 5। गोल स्टेट में ए क्लीन होना है मतलब 4, बी क्लीन होना है मतलब 6, एंड आई शुड गो इन ए मतलब 1। इज दिस क्लियर? स्टेप नंबर 1 इसका क्लियर हुआ। पहले वाला स्टेप नंबर 1 एकदम सिंपल था, क्यों पता है? इनिशियल स्टेट गोल स्टेट दिया हुआ था, इधर इनिशियल स्टेट गोल स्टेट दिया हुआ नहीं है, तो ये सब अपने को डिटेल में मगजमारी करना पड़ा। किसी को कुछ भी डाउट? ठीक है, कुंजल ने बोला है कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? ओके, मैं ये पूरा रिविजिट वापस करूंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 के पास। मुझे जरा बताओगे व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 2? समवन अनम्यूट एंड आंसर व्हाट इज अवर एक्शन। तो स्टेप नंबर 2 इज एक्शन।
तो स्टेप नंबर 2 एक्शन है, तो क्या एक्शन पॉसिबल है? कौन से पॉसिबल एक्शंस है? मेरे पास 2 ही एक्शन पॉसिबल है। रूल नंबर 1, suck the dirt, and rule number 2, what will be rule number 2? Move from one room to other. खत्म। और वैक्यूम क्लीनर कुछ कर ही नहीं सकता है ये 2 एक्शंस के अलावा। सो व्हाट इज द थर्ड स्टेप, बताओ जरा। सॉल्यूशन ट्री। सोल्यूशन ट्री। सोल्यूशन ट्री जो बनेगा वो 2 बनेगा। पहला वाला मैं बनाऊंगा, दूसरा वाला तुम बना के मुझे फाइनल आंसर दोगे। इनिशियली में कहां पे हो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मुझे बताओ। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब है? हु कैन एक्सप्लेन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? अरे जल्दी बोलो। x इक्वल्स टू 1 इंडिकेट, x इक्वल्स टू 1 इसका मतलब क्या है ये देख के बताओ। x इक्वल्स टू 1 मतलब क्या? रूम ए, y इक्वल्स टू 3 मतलब क्या? नॉट क्लीन नॉट रूम, क्लीन। what not clean? y represents what? Cleanliness of room A. and z equals to 5 मतलब क्या? not clean. what not clean? रूम नंबर बी। परफेक्ट। तो अभी मुझे बात बताओ, मैं विद दिस कौन से रूम में हूं ये बताओ फटाफट। आई एम इन विच रूम राइट नाउ? ए, तो पहले मैं ए को क्लीन करूं। डू यू अग्री? यस, तो क्लीन करना मतलब सक द डर्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा रूल 1, x इक्वल्स टू 1, बट y क्या बनेगा पता है ना? जो 3 था वो बन जाएगा 4 एंड z इक्वल्स टू 5। अभी मैं रूम 2 में चले जाता हूं। रूम 2 में चले जाने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं रूल 2, जिसके वजह से x इक्वल्स टू 1 बन जाएगा 2, y इक्वल्स टू 4 एंड z इक्वल्स टू 5। समझा? यस सर, फिर मैं अभी रूम 2 को क्लीन करूंगा। रूम 2 को जब क्लीन करूंगा तो आई विल यूज रूल 1। तो इधर क्या आएगा? x इक्वल्स टू 2 आएगा, y इक्वल्स टू 4 आएगा, z इक्वल्स टू 5 का बनेगा 6। एंड जरा चेक कर लो, इज दिस माई गोल स्टेट? चेक कर लो, इज दिस माई गोल स्टेट? 2 4 6? एब्सोल्युटली यस, 2 4 6 इज माई गोल स्टेट। ठीक है, दिस वॉज फॉर इनिशियल स्टेट रूम ए। Now the initial state is room B, and now I will be only writing what you will tell me. चलो इधर इनिशियल स्टेट क्या आएगा बताओ मुझे। इनिशियल स्टेट क्या रहेगा? x इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 5। रोहित, अभी नेक्स्ट क्या होगा बताओ? नेक्स्ट क्या होगा बताओ? मैं कौन से रूम में हूं इसका क्या मतलब है? फटाफट अनम्यूट और आंसर। मैं कौन से रूम में हूं? रूम ए में या बी में? मैं बी में हूं। ना ए क्लीन है ना बी क्लीन है, तो पहले बी को क्लीन करो। तो मैं इधर यूज करूंगा रूल नंबर 1। तो x इक्वल्स टू 2 रहेगा, y इक्वल्स टू 3 रहेगा, बट z इक्वल्स टू 5 का बनेगा 6। चलो इसके बाद बताओ मुझे क्या आएगा इधर? x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 6। आई विल गो टू अनदर रूम, रूल नंबर 2। तो ये 2 का बनेगा 1। नाउ 1 को क्लीन करूंगा। 1 को क्लीन करने के लिए रूल नंबर 1, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 का बनेगा 4, z इक्वल्स टू 6। एंड चेक करो, दिस इज योर गोल स्टेट। सो क्विकली, इसमें अपने को इनिशियल स्टेट नहीं दिया था, तो मैंने क्या किया? मैंने अज्यूम किया कि x को
रूम रिप्रेजेंट करने दो, y को a का क्लीनलीनेस रिप्रेजेंट करने दो, z को b का क्लीनलीनेस रिप्रेजेंट करने दो। जब x1 है मतलब मैं रूम 1a में हूं, जब x2 है मतलब मैं रूम b में हूं। जब y3 है तो नॉट क्लीन a, y4 है क्लीन a। जब z5 है नॉट क्लीन b, जब z6 है क्लीन b। So what are the possibility of the initial state? Either I am in A or I am in B. If I am in A, my value is 135. If I am in B, my value is 235. ठीक है, गोल स्टेट में 1 रहेगा तो 2 करने का, 3 का 4 करने का, 5 का 6 करने का। सिमिलरली फॉर रूम बी मैं दो ही एक्शंस कर सकता हूं, सक द डर्ट, मूव द वैक्यूम क्लीनर फ्रॉम वन रूम टू अदर, एंड देन द सोल्यूशन ट्री, एंड देन द सोल्यूशन ट्री। ठीक है, सो किसको डाउट है, किसने मुझे पूछा था ये डाउट? आई थिंक सो ये डाउट पूछा था कुंजल। डिड यू अंडरस्टैंड? रूपाली, यू हैव एनी डाउट? No, sir. ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग। कुंजल, डाउट कहां पे? प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। सेकेंड एक्शन के ऊपर वाला, कौन सा? एक्शंस के ऊपर वाला। फर्स्ट स्टेप में डाउट है? यस सर। ओके, देखो, व्हाट इज द एम गिवन हियर? एम दिया हुआ है कि दो रूम्स है ए और बी, उसमें वैक्यूम क्लीनर है और उसमें जो डर्ट है ना वो क्लीन करना है। सो सोल्यूशन, फाइंड सोल्यूशन फॉर क्लीनिंग द रूम्स। स्टेट डिस्क्रिप्शन देखो क्या है। स्टेट डिस्क्रिप्शन में मैंने अज्यूम किया कि एक्स को रिप्रेजेंट करने दो कौन सा रूम है, वाई को रिप्रेजेंट करने दो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ रूम ए, एंड लेट जेड रिप्रेजेंट द क्लीनलीनेस ऑफ रूम बी। इधर तक अभी समझा? मैंने 3 लेटर्स लिए और तीनों लेटर्स को किसके साथ हाँ मैच किया, सर, इतना समझा? हाँ। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, जब x1 है मतलब आई एम इन रूम ए, जब x2 है मतलब आई एम इन रूम बी। सिमिलरली जब हाँ। y1 है, y3 है तो मैं इंडिकेट करता हूं कि मेरा रूम ए क्लीन नहीं है। जब y4 है मैं इंडिकेट करता हूं मेरा रूम ए क्लीन है। सिमिलरली जब z5 है रूम बी नॉट क्लीन, z6 है रूम बी क्लीन। समझा? हाँ समझा सर। आगे आपको इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट का भी समझा है, ये जो अजम्पशन हाँ किया है। समझा। ठीक, चलो स्टार्ट राइटिंग।
Sir, please move this. स्क्रॉल करो. हो गया सबका लिख के? शैल आई प्रोसीड विद द थर्ड प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके. अभी थर्ड वाला ना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. जब तक वो प्रॉब्लम होता नहीं और जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक कुछ लिखने का नहीं. ठीक है. सो गिव द हेडिंग एज वाटर जग प्रॉब्लम. वाटर जग
प्रॉब्लम. ओके, इसमें क्या बोला है कि assume two water jugs, A 4 लीटर, ठीक है, एंड B 3 लीटर. A 4 लीटर एंड B 3 लीटर. ये अज्यूम करने के लिए बोला है. इनिशियली both water jugs are empty. Goal is in jug A fill 2 liters and jug B can have any amount of water. Find solution. ये मेरा क्वेश्चन है. सॉल्यूशन फाइंड करो. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? सबको पता ही है अभी. व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? स्टेट डिस्क्रिप्शन. इनिशियल स्टेट एज पर दिस इंडिकेट्स, ये मेरा जग ए है जिसमें 4 लीटर पानी जा सकता है, और ये मेरा जग बी है जिसमें 3 लीटर पानी जा सकता है. दोनों खाली है. गोल स्टेट में क्या बोला गया है कि ये 4 लीटर वाले में 2 लीटर पानी फिल करो, 2 लीटर. एंड जग बी में जो 3 लीटर का है उसमें कुछ भी हो सकता है, एनी अमाउंट. इट कैन बी 0 लीटर, इट कैन बी 1 लीटर, इट कैन बी 2 लीटर, इट कैन बी 3 लीटर, एनीथिंग. सो लॉजिकली अगर मैं आपको बोलूं लेट एक्स रिप्रेजेंट water in A, let Y represent water in B. तो मुझे बताओगे therefore इनिशियल स्टेट में x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है. गोल स्टेट में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का वैल्यू क्या होना चाहिए. इनिशियल स्टेट में x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है? 0. परफेक्ट, 0 लीटर 0 लीटर. बट गोल स्टेट में x का वैल्यू क्या है, 2. y का 2. वैल्यू क्या है? y is anything. So मैंने लिखा n. So n represents anything. n represents anything. ठीक है. सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप. थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आगे जाके ट्रिकी है. तो व्हाट आई वांट, आप ये पहले लिख के ले लो. वाटर जग प्रॉब्लम, ये आप लिख के ले लो.
तुम्हारे वाटर जग पे कोई भी मार्किंग नहीं है 1 लीटर कितना, 2 लीटर कितना, 3 लीटर कितना, देर इज नो मार्किंग। जितने भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोगों ने आपके घर पे, किसी ना किसी के घर पे वाटर प्यूरिफायर रहेगा। आजकल वाटर प्यूरिफायर प्रोग्राम बेस्ड आते हैं, याद करो। वो फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करता है ना, तो आपका बॉटल कितने ml का है, या आपका ग्लास में कितना पानी जाता है, वो सेट करके रखता है। तो यू प्रेस ऑन ग्लास, ग्लास फुल होने तक भरता है वो पानी, ऑटोमेटिकली बंद कर दे रहे हैं, तुमको बटन बंद करने की जरूरत नहीं है। इट इज यूजिंग सिमिलर कंसेप्ट। सो प्लीज टेल मी वंस यू कंप्लीट, बिकॉज 8 यहाँ पे रूल्स लगने वाले, टोटल 8, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 आएगा जो रहेगा सोल्यूशन 3। डन। No. कंप्लीट इट फास्ट। ओके, ना ध्यान दो, व्हाट इज आवर स्टेप 3, सॉरी स्टेप 2, एक्शंस। अच्छा, अभी मेरे पास क्या क्या पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं रे? मेरे पास पहला एक्शन ये हो सकता है कि मैं कहता हूं पूरा जग ए को फिल करो, तो फिल जग ए। मेरा सेकेंड एक्शन क्या हो सकता है? फिल जग बी। मेरा थर्ड एक्शन क्या हो सकता है? एम्प्टी जग ए। मेरा फोर्थ एक्शन क्या हो सकता है? एम्प्टी जग बी। इसका क्या मतलब है? इधर दो वैल्यूज थे, x इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, x पूरा जग ए को फिल करना है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जग ए? 4 liters. तो इधर आ जाएगा 4। एम आई राइट नाउ कंसर्न अबाउट रूल नंबर 1 में, एम आई कंसर्न अबाउट बी में क्या है? नो। मैं यहां पे लिखता हूं एन, कुछ भी होने दो, 0 1 2 3, कुछ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे फिलहाल ए को फुल करना है। चलो मुझे बी को फुल करना है, व्हाट इज द बी का कैपेसिटी? 3. व्हाट आई शुड आई वरी अबाउट एक्स में क्या है? नो, एक्स में इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा, जग ए को एम्प्टी कर दिया, जग ए को एम्प्टी कर दिया,
तो जग ए में जो भी था खाली हो गया, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। वाई में मुझे क्या लेना देना है? इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा, एम्प्टी जग बी, एक्स में कुछ भी होने दो ना, वाई में 0। सो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पॉसिबल एक्शंस बताए? ए को पूरा भरो, बी को पूरा भरो, ए को पूरा खाली करो, बी को पूरा खाली करो। इतना समझा? इतना समझा? यस सर। ठीक है। और आप क्या ऑपरेशंस और आप क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो? आप एक ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हो कि ट्रांसफर एंटायर वाटर, पूरा पानी लो, फ्रॉम ए टू बी। एंड सिक्स्थ एक्शन क्या हो सकता है? सिक्स्थ एक्शन, सिक्स्थ एक्शन ये हो सकता है, एक्शन नंबर 6, फ्रॉम बी टू ए। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कुछ पानी है, बराबर? वो पानी किस में है? ए में है। मुझे वो पानी कहां पे मूव करना है? मुझे वो पानी बी में। कहां पे मूव करना है? बी में मूव करना है। ठीक है। मेरे पास एक्स में m लीटर है और मेरे पास y में n लीटर है। मैं क्या करता हूं, मेरे को एक बात बताओ, मेरे जग ए में 3 लीटर पानी है और मेरे जग बी में 2 लीटर पानी है। ए का पूरा जग उठाओ और बी में डाल दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए में कितना लीटर पानी है? ए में कितना लीटर पानी है? 3 लीटर पानी है। 3 लीटर, इमेजिन हुआ 3 लीटर पानी। बी में कितना लीटर पानी है? 2 लीटर पानी है। तो ए का पूरा जग बी में डाल दिया, तो बी में सिर्फ और कितना लीटर जाएगा? बी का एक कैपेसिटी लीटर। कितना है? 3 है ना, 1 ही लीटर जाएगा। बाकी का क्या होगा? बाकी का ओवरफ्लो होके बह जाएगा, क्योंकि इधर क्या लिखा है? पूरा ए को खाली करो। तो जब मैं ए को खाली कर दूंगा तो मुझे बताओ एक्स में क्या आएगा? 0 ना। पूरा खाली कर दिया, पर वाई में क्या जाएगा? वाई में पहले से क्या था? 2 लीटर। एन प्लस एम जाएगा ना। एक्स में एम था, वाई में एन था। मैंने पूरा एक्स को उठाया, मतलब पूरा एम को उठाया और वाई में डाल दिया। इसके लिए इधर एन प्लस एम हुआ और तुम्हारा ए क्या हो गया? खाली हो गया, बराबर? चलो मुझे इधर बताओ, चलो एक्स में है एम, वाई में है एन। अगर मैं पूरे बी को ए में खाली कर देता हूं तो एक्स में पहले से क्या है? एम प्लस क्या होगा? एन। पर वाई क्या होगा? 0। सो टेल मी, इसका मतलब क्या है? एक्स में जितना पानी है वो वाई में डालो और एक्स को खाली करो। इसका ये इंटरप्रिटेशन है। आपको सिंपल लैंग्वेज में यहां पे लिख के देता हूं। एक्स का पूरा पानी मतलब एम वाई में डाल दो, मतलब एन। जब तक एक्स खाली मतलब 0 नहीं होता। डिड यू अंडरस्टैंड मैंने इधर क्या किया है? और यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, पर यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एक्स के बदले क्या लिखूंगा? वाई का पूरा पानी मतलब एन, एक्स में डालो मतलब एम। जब तक
y खाली नहीं होता। फिलहाल ये 6 एक्शंस आपको समझे क्या? डाउट है तो अभी पूछ लो, आगे जाके पूछ के मतलब नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड फर्स्ट 4? Yes. डिड यू अंडरस्टैंड 5th and 6? तुम्हारे सामने 2 वाटर जग रखो, एक ए और एक बी। ए को पूरा खाली करो बी में, बी अगर बह जाता है बह जाने दो, ए को 0 कर दो। इमेजिन हुआ? अरे भाई इमेजिन हुआ सबको? क्या किया? Yes. Yes. ओके, अभी और क्या पॉसिबल ऑपरेशन हो सकते हैं मुझे बताओ। मैं वापस पूछ रहा हूं, एक्स में कितना लीटर पानी था? एक्स में कितना लीटर पानी था? 3 लीटर था। वाई में कितना लीटर पानी था? 2 लीटर था। ठीक है, ये 3 लीटर पानी मैंने पूरा खाली कर दिया, पर वाई में जग बी में 1 ही लीटर जाएगा ना, और क्योंकि उसका कैपेसिटी कितना है, 3 लीटर का है, बाकी का पानी क्या हो गया? बह गया ना। मुझे अभी पानी को वेस्ट नहीं करना है, तो रूल नंबर 7, ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम ए इन बी टिल बी बिकम्स फुल। और स्टेप नंबर 8 क्या रहेगा बताओ, या एक्शन नंबर 8 क्या रहेगा? अभी तो अनम्यूट करके बताओ यार, अभी तो तुम इतना बता ही सकते हो। क्विकली क्विकली, पॉइंट नंबर 8 क्या रहेगा? फटाफट बताओ। ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम बी इन ए टिल ए बिकम्स फुल। मतलब पूरा पानी खाली नहीं करने का, उतना ही खाली करने का जितना ए ले सकता है। ठीक है, तो जरा मुझे यहां पे एक बात बताइए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए? 4 liter. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बी? 3. 3 liter. 3 लीटर, बराबर। पर कितना पानी आपको डालना है? उतना ही, जब तक बी फुल नहीं हो जाता। बराबर बराबर, इतना समझा? हाँ। ठीक है, तो अभी मुझे सिर्फ ये डायग्राम देख के मुझे बात बता दो सिर्फ। ये जग ए है और ये जग बी है। इसमें 1 लीटर ऑलरेडी है और इसमें 4 लीटर भरा हुआ है। लॉजिकली इधर से पानी इधर कितना ट्रांसफर होगा बताओ? 2 लीटर. 2 liter. 3 लीटर. 2 लीटर के बाद क्या होगा? और रुकना पड़ेगा। ओवरफ्लो मुझे करना है नहीं, तो मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे बात बताओ, मेरा स्टेटस क्या रहेगा? एज पर दिस जग ए में 2 लीटर पानी रहेगा और बी में 3 लीटर. बराबर। पर ये अभी हम सिस्टम को कैसे बता पाएंगे? अपने को विजुअली रिप्रेजेंट हुआ। इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी 4 और 1, ऐसा भी हो सकता है इट इज 4 और 2, ऐसा भी हो सकता है इट इज 4 और 3। तो मुझे एक यूनिवर्सल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं यूनिवर्सल इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? मुझे बताओ, एक्स में फिलहाल क्या है और वाई में फिलहाल क्या है, एज पर अवर एग्जाम्पल? 4 लीटर. ठीक। X में. अच्छा, मुझे बात बताओ, जब मैं ये करूंगा एक्स में से पानी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ऑब्वियसली. ऑब्वियसली घटेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ,
if this 1 liter is n and if this 4 liter is m, मेरे को यूनिवर्सल रूल बनाना है। तो मुझे बताओ x में फिलहाल कितना पानी है, m पानी है, M और y में कितना पानी है, N n पानी है। तो ये पानी a का जब b में जाएगा तो b में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, b में B में ऐड होगा। ऐड होगा, n प्लस m होगा, Yes. हाँ बराबर। तो मैं इधर n लिखता हूं प्लस m लिखता हूं, पर पहले वाले केस में भी देखो मैंने n प्लस m लिखा है, पर इधर क्या होता है पता है, ओवरफ्लो हुआ तो भी चलता है, पर इधर मुझे ना एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, n प्लस n मैक्सिमम, दोनों का एडिशन शुड बी 3। क्यों, समझा ना? हाँ ओवरफ्लो नहीं करना क्योंकि इसकी v वजह का से। कैपेसिटी 3 है, पर ऊपर मैंने ये कंडीशन नहीं लिखा था। अच्छा अभी मुझे बताओ x में से पानी घटेगा या पानी बढ़ेगा? घटेगा। 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 कितना घटेगा? 2 लीटर। 2 2 लीटर। हर वक्त लीटर। 2 लीटर जाएगा क्या? नहीं। हर वक्त 2 लीटर जाएगा क्या? नहीं। नहीं बस एक है। इट डिपेंड्स कि y का कैपेसिटी कितना है। अगर y का n का वैल्यू 2 है तो 1 ही लीटर जाएगा। तो आपको ये तो पक्का पता चल गया ना, 100% घटेगा। हाँ ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी x का कितना है? मैक्सिमम liters. कैपेसिटी x का कितना है? तो मेरा जो भी घटेगा 4 में से घटेगा, तो 4 माइनस N 4 माइनस, अभी मैं उसके बाद m उधर लिख दूंगा। फिलहाल मैं अज्यूम करता हूं मेरा पूरा 4 लीटर है, तो 4 लीटर में से कम होगा, मतलब 4 माइनस होगा, बराबर। हाँ बट मैं इधर 4 लिख ही नहीं रहा हूं, मैंने 4 के लिए क्या लिखा है, m, हाँ मतलब m माइनस होगा। अरे कितना माइनस होगा? सामने वाले का कैपेसिटी कितना है, 3 है ना, हाँ और ऑलरेडी उसमें कितना है, n है ना। हाँ तो सामने वाले का कैपेसिटी 3 माइनस n। अभी तुम वैल्यू डाल के देखो, m का वैल्यू कितना था, 4 था, n का वैल्यू कितना था, 1 था। हाँ तो दिस इज 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। मतलब मैं 2 लीटर एक्सेप्ट कर सकता हूं, तो m में से 2 हटा दो, इसके लिए m माइनस 2, इसके लिए m माइनस 2। हाँ ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, टोटल कैपेसिटी माइनस n। उसका जितना वैल्यू आएगा उतना m में से वैल्यू कम होगा। अगर इधर 3 माइनस n होता, 3 माइनस 2, n का वैल्यू होता 2, तो उधर से 1 ही लीटर इधर आता, तो उधर से 1 लीटर इधर आता, तो m माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, इधर 3 लीटर रहता, इधर 1 लीटर ट्रांसफर होता। चलो मैं तुमको और एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, मैंने तुमको अभी ये एक्सप्लेन किया ना, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, साइड में तुम जो बोलोगे मैं वो डायग्राम बनाऊंगा। मुझे क्विकली बताओ इधर मेरा स्टेटस क्या है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 4, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 3। ठीक है, अज्यूम करो इधर 1 लीटर है और इधर कितना भरा पड़ा है, फुल 3 लीटर। इधर फुल है, मतलब इधर मेरा 3 लीटर है। ये 3 लीटर मतलब n, और ये 1 लीटर मतलब m। एम आई राइट? हाँ ठीक है, चलो तो x का वैल्यू क्या था, m था, M और n का था वैल्यू y का वैल्यू क्या था, n था। N। चलो क्विकली टेल मी, अभी b का पानी a में जाएगा जब तक a फुल नहीं होता। तो मुझे बताओ a में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। मतलब m प्लस M n plus होगा। n. डू यू अग्री? Yes. हाँ अरे पर कब तक m प्लस n? जब तक कैपेसिटी उसका फुल नहीं होता। कैपेसिटी उसको फिल नहीं होता। एग्जैक्टली, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, मैक्स मैक्स 4।
4 एकदम परफेक्ट आंसर। अरे पर इधर घटेगा ना, Yes. हाँ इधर हाँ, सर। घटेगा ना, मतलब y इक्वल्स टू मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 10. ठीक है। फिलहाल अपना वैल्यू कितना है, n है ना, तो n हाँ माइनस इसका मैक्सिमम कैपेसिटी a का 4 4 माइनस m। m। तो अभी मुझे बताओ, लॉजिकली डायग्राम देके बताओ, ए में कितना लीटर और जा सकता है। और 3 लीटर। 3. 3 लीटर। 3 लीटर अगर ए में गया तो बी में कितना बाकी रहेगा, 0. 0। 0। तो देखते हैं इक्वेशन अपना बराबर है कि नहीं। एन का वैल्यू कितना है अपने पास, 3। हाँ 4 हाँ। माइनस 1 कितना होता है, 3 3 माइनस 3 0 ना, 0। तो मेरा इक्वेशन बराबर है, मेरा इक्वेशन बराबर है। सिर्फ इक्वेशन नंबर 6 7 और 8 चैलेंजिंग है, बाकी एकदम से, और चैलेंजिंग भी नहीं है, कॉमन सेंस है ये। इट्स अ सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन का एडजस्टमेंट, नथिंग एल्स। समझा सब लोगों को। हाँ सर। यस सर। तो अभी फिलहाल के लिए आपने फर्स्ट स्टेप लिख के लिया है, हाँ सर फर्स्ट स्टेप दिखा था। ठीक है। चलो सेकंड स्टेप लिख के ले लो फास्ट। मैंने x इक्वल टू 4 क्यों लिखा है, पहले पता चला ना, क्योंकि मैक्सिमम जग ए का कैपेसिटी 4 लीटर है। एंड y इक्वल्स टू n, मतलब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है y में क्या है, जग बी में क्या है।
सर प्लीज स्क्रॉल कर दो। डन। ओके, अभी क्या है, अभी ऑलमोस्ट वी हैव रीच द मतलब फाइनल सोल्यूशन। जो मैं सोल्यूशन ट्री दे रहा हूं वही करना जरूरी नहीं, यू कैन डू इट विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मुझे सिर्फ आप अभी रूल्स बताते जाओगे, रूल नंबर। तो स्टेप नंबर 3 इज सोल्यूशन ट्री। एवरीवन प्लीज स्टार्ट टेलिंग मी द इनिशियल स्टेट। क्या था इनिशियल स्टेट? x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। डू यू अग्री विद दिस? यस सर। ठीक है, अभी एक काम करो, b को भरो, b को भरो। ये कौन सा रूल है? अरे b को भरो, कौन सा रूल है? सेकेंड रूल। सेकेंड रूल, सेकंड वाला। जिसके वजह से y का जो वैल्यू 0 था वो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो मैंने इधर क्या किया है बताओ मुझे? फिल बी बराबर। अभी आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ ऐसा हुआ रहेगा। एम आई राइट? दिस इज ए, दिस इज बी। बी को भर दिया, कितने हाँ। लीटर से भर दिया बी को? 3 लीटर, सॉरी 3। 3 लीटर से भर दिया। वेरी गुड। अभी एक काम करो, अभी पूरा बी लो और ए में खाली करो। पूरा बी लो और ए में खाली करो। कौन सा रूल? 6th। मतलब मैंने क्या किया? एम्प्टी बी इन ए।
तो अभी इसकी वजह से x का वैल्यू क्या होगा? 3. इक्वेशन देख के बताओ. कैन आई से इट विल बी 0 + 3 Yeah. एंड y बनेगा 0. हाँ. तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज a, इसमें 3 लीटर चले जाएगा, एंड दिस इज b, और ये 0 हो जाएगा. डू यू अग्री? Yes, sir. ठीक है. अभी एक काम करो, b को वापस भरो. कौन सा रूल हुआ? रूल 2 ना. Rule 2. फिल b. तो क्या होगा जरा बताओ. x = 3 होगा, y = 3 होगा वापस, 3 होगा. जिसके वजह से a में आपको 3 लीटर दिखेगा और b में भी आपको 3 लीटर. 3 लीटर दिखेगा. एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है. अभी एक काम करो, b को लो और उतना ही पानी a में डालो जब तक a खाली नहीं होता. कौन सा रूल है? b को लो और उतना ही पानी a में डालो जब तक a खाली नहीं होता. Third. जब तक, सॉरी, a फुल नहीं होता. 8 वाला. 8 वाला एकदम 8. परफेक्ट. रूल 8. ठीक है. ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम b टू a टिल a इज फुल. तो मुझे बताओ x में क्या होगा? 4. कितना जाएगा x 4. में? 1 ही लीटर जा सकता है ना. Yes. हाँ. 3 + 1. तो y में क्या होगा? 1 लीटर उधर चले गया तो y में होगा 3 - 1. एम आई राइट? Yes. Yeah. तो इधर रिप्रेजेंटेशन में तुमको क्या दिखेगा? a हो गया फुल और b में कितना बाकी है? 2 लीटर. 2 लीटर. ठीक है. दिस इज 4, दिस इज 2. अभी एक काम करो, a को खाली करो. कौन सा रूल? a को खाली कर दो. कौन सा रूल? इज इट रूल 3? Rule 3. एम्प्टी b, सॉरी एम्प्टी a. तो मुझे बताओ, अगर आपने a को खाली कर दिया तो x में क्या आएगा? 0 आएगा. y में तो 2 ही है, जिसके वजह से आपको a में क्या दिखेगा? 0 लीटर, और b में क्या दिखेगा? 2 लीटर. 2 लीटर. अभी एक काम करो ना, पूरे b को a में डाल दो. पूरे b को a में डाल दो. कौन सा रूल? पूरे Six. b को a में डाल दो. 6 ना. 6. 6. 6. 6. ठीक 6. है. एम्प्टी 6. b इन a. तो इधर क्या दिखेगा? x = 2 दिखेगा, y = 0 दिखेगा. बराबर. Yes. दिस इज a विथ 2 लीटर, दिस इज b विथ 0 लीटर. हम्म. इज दिस द गोल स्टेट? Yes. Yes, sir. हम्म. मैं यही नहीं बोला तुमको ऐसे ही करना है. तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करते बैठो. देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस, बट आपको अल्टीमेटली ये चीज लेके आना है कि x में 2 होना चाहिए, y में कुछ भी होने दो. डिड यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ट्री? आपको Yes, sir. सिर्फ इसको Yes, बैठ के 4-5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट. ठीक है. चलो, कंप्लीट द सॉल्यूशन ट्री फास्ट.
ओके, सो फाइन. आज Sir, wait आपका for 2 minutes. यस काजल. Wait for 2 minutes. I'll give you 2 more minutes and जिसका हो गया है for them, next lecture से we are starting with all algorithms of searching algorithms. दो तरीके के सर्च होते हैं, इनफॉर्म सर्च और इनफॉर्म सर्च. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से एल्गोरिथम्स चालू करेंगे, प्रॉब्लम्स चालू करेंगे. मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग दैट. एंड अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जैसे आपको कुछ डाउट है, प्लीज क्लियर द डाउट. आज का लेक्चर सबको समझा है अच्छे से एवरीवन? आई वांट द रेस्पॉन्स. यस सर, समझा आज. ओके, सो अगर आपको डाउट नहीं है, एज यू नो आई विल बी द लास्ट पर्सन टू लीव. टू जस्ट रीइटरेट, आज हम लोग ने एआई एजेंट्स देखे. ठीक है, एआई एजेंट का डेफिनेशन देखा, एक छोटा सा एग्जांपल देखा, एंड देन वी स्टार्टेड विद प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सर्चिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग 3 स्टेप्स में होता है. सबसे पहला स्टेट डिस्क्रिप्शन, एक्शंस, एंड वो एक्शंस के ऊपर से सोल्यूशन ट्री. 8 पजल प्रॉब्लम देखा, वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम देखा, एंड वाटर जग प्रॉब्लम देखा. प्लीज ये प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अनइनफॉर्म सर्च. वी विल कंप्लीट विद अनइनफॉर्म सर्च एंड स्टार्ट विद इनफॉर्म सर्च. ठीक है, चलो. इफ यू डोंट हैव डाउट यू कैन लीव. हैव अ गुड इवनिंग अहेड. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. From the next lecture you will be getting the notes on the app. Thank you everyone, bye. We'll meet on Monday for IoT. We'll meet next Wednesday as per schedule. Tell all your friends to also join. Okay, everything will be covered in your notebook, you don't have to worry. Still, if you have any doubt, please clear it out. Yes Ayush, I'll share the screen again. So कुठचं काय मिस झालं exactly? प्रॉब्लम सॉल्विंग यहां से चालू किया था. इसका पहले का मिस हुआ है तो एआई का डेफिनेशन लिख के ले लो. It is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems, where system mimics like human brain, where system mimics like human brain. और उसके बाद ये AI एजेंट का डायग्राम था. The definition of the sheet. Definition is AI is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems, which mimics like human brain, which mimics like human brain. The AI is coined by John McCarthy. AI is coined by John McCarthy. ठीक है. Yes. कोण आहे विद्यालंकर मधून? Yes, sir.
Madam, we can conclude. Thank you. Good night.